Hello everyone. I hope all of you are doing good. So children, before starting today's video, I want to inform you something. Yesterday I don't know what happened to my device. Because of that I'm not able to record the full video of this chapter. But today I want to complete this, and tomorrow I will provide you the question answer of this. Okay? So see here, jute. Yesterday we discussed that jute we get from the stem part of jute plant. Okay, and after that we are putting that jute stem, and in on which place of India we get jute? In West Bengal, Assam, and in Bihar. Okay, in these parts we get jute plant. Okay, clear? After the harvesting of jute, what we had done, we need to put the stem of harvested plant in water, okay, for few days. What farmers are doing after harvesting, means when the jute plant got mature, after that they harvested them. okay, harvested means उसको काटना, ठीक है, उसको काट के जब वो तैयार हो जाता है तो उसको काट के क्या करते हैं, सबसे पहले उसको पानी में रख देते हैं कुछ दिन के लिए, ठीक है. द स्टेम रॉट एंड फाइबर आर सेपरेटेड बाय हैंड. उसके बाद क्या होगा, अगर आप किसी भी चीज़ को कुछ दिन के लिए पानी में छोड़ दोगे तो क्या होगा, कुछ दिन बाद वो क्या होगा, ख़राब होने लगेगा, सड़ने लगेगा. तो जब स्टेम सड़ने लगेगा तो उसमें से फाइबर्स क्या होगा, जूट फाइबर ईजिली आप विद द हेल्प ऑफ योर हैंड यू कैन रिमूव. क्लियर? नाउ सी द नेक्स्ट पेज. Making yarn from cotton. Okay, making yarn from cotton. See here. So children, I told you, remember this, we get fabric from yarn and we get yarn from fiber. ठीक है, फाइबर से हम yarn बनाते हैं और yarn से हमें फैब्रिक मिलता है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट. See, to make fabric, all these fibers are first converted into yarn. How is it done? ठीक है, तो अगर हमें कोई भी फैब्रिक बनाना है तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, यार्न चाहिए, और यार्न हमें कहाँ से मिलता है, फाइबर से. ठीक है, तो देखो ये कैसे होता है. सी, स्पिनिंग कॉटन यार्न. कल हमने पढ़ा था गिनिंग. ओके, गिनिंग मीन्स व्हाट? Yesterday I told you about the ginning. Ginning means the process. See here, I told you yesterday. See, the process by which seed are separated from cotton fiber. Okay, fibers. See here, fiber separated from seed by combing, and this process is known as ginning. Now we are going to discuss spinning, so don't confuse in the terms. Okay, spinning is the process of making yarn from fiber. Okay, जो जिस प्रोसेस से हम yarn बनाते हैं with the help of fiber, that is known as spinning. Okay, see, activity 4, hold some cotton wool. Okay, this man is making. Okay, so see, hold some cotton wool in one hand and pinch some cotton between the thumb and forefinger. ठीक है, आपको क्या करना है, एक हैंड से आपको कॉटन वूल होल्ड करना है और दूसरे हैंड के थंब और फोर फिंगर के हेल्प से उसे क्या करना है, कॉटन को पिंच करना है. नाउ जेंटली स्टार्ट पुलिंग आउट द कॉटन लाइक दिस मैन ही इज़ डूइंग. ओके, क्या करना है, सबसे पहले एक हैंड से आप पकड़ोगे कॉटन को और दूसरी हैंड के फोर फिंगर, और इस पिक्चर में तो ये मिडिल फिंगर से पकड़ा है, बट फोर फिंगर इज दिस वन. ओके, फोर फिंगर एंड विद द हेल्प ऑफ थंब यू कैन पुल इट आउट. ओके, और धीरे धीरे क्या होगा, फाइबर किस में चेंज होने लगेंगे, कॉटन फाइबर चेंजेस इनटू यार्न. सी, now gently start pulling out the cotton while continuous twisting the fiber. Figure 3.9. Are you able to make yarn? तो क्या होगा, एक तो आपको उसको पुल करना है, जेंटली पुल करना है, और प्लस उसको ट्विस्ट भी करना है. ठीक है, ऐसे ऐसे उसको मतलब अपनी तरफ मोड़ते हुए आप ट्विस्टिंग भी करोगे. ठीक है, तो वो अपने आप क्या होगा, फाइबर से यार्न बनेगा. ठीक, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग यार्न फ्रॉम फाइबर इज नोन एज स्पिनिंग. दैट आई ऑलरेडी टोल्ड यू. ओके,
Now see, in this process fiber from a mass of cotton wool are drawn out and twisted. This brings the fiber together to form a yarn. ठीक है, same process. Now come to next. A simple device used for spinning is a hand spindle, also called तकली. तो स्पिनिंग प्रोसेस के लिए हमें क्या चाहिए, जैसे अभी मैंने बताया था गिनिंग के लिए हमें क्या चाहिए, कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर. ओके, एंड बाय द प्रोसेस ऑफ कॉम्बिंग वी रिमूव, कॉम्बिंग करके क्या करेंगे, वी रिमूव सीड फ्रॉम कॉटन फाइबर एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज गिनिंग. ठीक है, बट इसमें क्या है, हम सिंपल डिवाइस यूज़ करते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, हैंड स्पिंडल, और उसको एक और नाम है तकली. ठीक है, अनदर हैंड ऑपरेटेड डिवाइस यूज फॉर स्पिनिंग इज चरखा. ठीक है, एक और डिवाइस क्या है, चरखा. दिस वन, ओके, दिस फिगर, आर यू एबल टू सी दिस वन, चरखा. ओके, चरखा की हेल्प से भी हम स्पिनिंग कर सकते हैं. ठीक, क्योंकि देखो अगर हम कोई भी यार्न बनाएंगे फाइबर से, तो अगर इस तरह से इस प्रोसेस से हम करेंगे बेटा, तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा. ठीक है, इस प्रोसेस से क्या होगा, हमें तो फैब्रिक बनाना है, यार्न हमें बहुत सारे बनाने हैं. ठीक है, तो अगर इस प्रोसेस से करेंगे तो इट विल टेक टू मच टाइम. ओके, सो वी नीड सम डिवाइस टू मेक आवर वर्क ईजियर एंड फास्टर. ठीक है, तो हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, या तो तकली और या फिर चरखा फॉर मेकिंग यार्न by the process of spinning. Now see, use charkha was popularized by Mahatma Gandhi as a part of independence movement. ठीक है, तो मोस्टली सबसे पहले मीन्स चरखा का यूज़ सबसे पहले, चरखा का यूज़ तो पहले भी होता था, लेकिन इसको महात्मा गांधी ने पॉपुलर किया. ठीक है, ड्यूरिंग इंडिपेंडेंस मूवमेंट. ही इनकरेज पीपल टू वेयर क्लोथ मेड ऑफ होम स्पन यार्न टर्म्ड एज खादी. और उन्होंने पीपल को अपना मीन्स इंडिया के पीपल को मोटिवेट किया कि हम मोस्टली कौन से करें, कौन से क्लोथ प्रेफर करें, खादी. ठीक है, एंड सम इम्पोर्टेड क्लोथ्स मेड इन द मिल ऑफ ब्रिटेन. टू पॉपुलराइज and promote khadi, the government of India constituted a body called Khadi and Village Industry Commission in 1956. तो ये तो वो है कि प्रमोट करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया था. ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट टॉपिक. स्पिनिंग ऑफ yarn on a large scale is done with the help of spinning machine. After spinning, yarn are used for making fabrics. तो स्मॉल स्केल पे हम तकली, ठीक है, हैंड स्पेंडल या फिर आप उसको तकली कह सकते हो, यूज़ कर सकते हैं, और चरखा का. बट अगर हमें लार्ज स्केल में बहुत सारे क्लोथ्स बनाने, फैब्रिक तैयार करना है, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, स्पिनिंग मशीन. ओके, एंड व्हेन वी गेट yarn फ्रॉम फाइबर, आफ्टर दैट वी यूज़ दैट yarn फॉर मेकिंग फैब्रिक्स. क्लियर, आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू. नाउ सी नेक्स्ट टॉपिक, yarn टू फैब्रिक. अभी हमने क्या पढ़ा था कि फाइबर से यार्न कैसे बनाते हैं. अब हम नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे, यार्न टू फैब्रिक. ठीक है, अब यार्न से फैब्रिक कैसे बनेगा. देयर आर मेनी वेज बाय विच फैब्रिक आर मेड फ्रॉम यार्न. द टू process are weaving and knitting. So now I am going to explain two more process, weaving and knitting. But don't forget ginning and spinning. Ginning means to remove the seed from cotton fiber. Okay, that process is known as ginning. Spinning means the process of making yarn from fiber. ठीक है, that process is known as spinning. Now we are going to discuss how we get fabric from yarn. ठीक है, तो we can get fabric from yarn by two process that is known as weaving and knitting. ठीक है, knitting means, तो most of you maybe saw when your mother is making sweater. Okay, that is known as knitting. ठीक है, स्वेटर बिनते हैं ना मम्मा लोग, तो उसी को कहते हैं knitting. But this time most of the people are not making, means पहले के टाइम पे तो लोग प्रेफर करते थे, है ना, knitting with the help of knitting they make the sweater at home only. But now people don't have time, so they are buying from the market. Okay, now see, so what is weaving? First of all we will discuss weaving. In activity 2 you might have noticed that fabric is made up of
two sets of yarn arranged together. The process of arranging two sets of yarn together to make a fabric is called weaving. तो पहली चीज़ अभी देखो हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करके पढ़ेंगे, then it is easy for us to differentiate between weaving and knitting. ठीक है, तो आपको जल्दी जब भी कोई चीज़, कोई भी दो प्रोसेस को ना आप अगर दोनों में डिफरेंस करके पढ़ोगे ना तो आपको ईजिली वो याद हो जाएगा. जैसे अभी देखो मैं एक साइड लिखती हूँ विविंग, ठीक है, विविंग, ओके, एंड ऑन द अदर साइड आई एम गोइंग टू राइट निटिंग. ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन विविंग एंड निटिंग इज विविंग. दोनों प्रोसेस क्या है, यार्न से फैब्रिक बनाने के, बट इन विविंग वी नीड टू सेट्स ऑफ यार्न. ओके, टू सेट ऑफ यार्न फॉर विविंग. बट निटिंग में क्या है, वी नीड ओनली वन सेट ऑफ यार्न. ओके, वन सेट ऑफ यार्न. ठीक, क्लियर? दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस. नाउ सी एक्टिविटी 5, टेक टू सेट ऑफ पेपर. अच्छा, ये आप एक्टिविटी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ पेपर. यू नीड टू टेक टू कलर्ड पेपर. ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर के पेपर लोगे, देन इट इज़ ईजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. तो टेक टू शीट्स ऑफ पेपर ऑफ डिफरेंट कलर, कट स्क्वायर पीसेस ऑफ लेंथ एंड विथ इक्वल टू 30 centimeter फ्रॉम ईच sheet. Now fold both the sheet into half. On one sheet, draw line as shown in the figure 3.12a. ठीक है, अब देखो 3.12a फिगर को क्या करना है, हमें शीट्स को कट करना है. ठीक है, और एक ही मीन्स डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर का. एंड ऑन द अदर एज शोन इन फिगर 3.12b, cut both the sheet along the dotted line and then unfold. तो पहले शीट को फोल्ड करेंगे, डॉटेड लाइन उस पर ड्रॉ करके फोल्ड करेंगे और उसी प्लेस पे दोनों शीट को कट करेंगे जहाँ पे हमने लाइन ड्रॉ की है. ठीक है, और जब दोनों शीट कट जाएगी तो उसे क्या करना, अनफोल्ड करना है. ठीक है, खोलना है दोबारा. नाउ वीव द स्ट्रिप वन बाई वन थ्रू द कट इन द शीट ऑफ पेपर एज शोन इन फिगर 3.12c. ठीक है, अब क्या करना है, विद द हेल्प ऑफ वन शीट वी कैन वीव द अदर वन. ठीक है, ये देखो ग्रीन वाली शीट्स को पहले कट किया और विद द हेल्प ऑफ ऑरेंज शीट वी आर विविंग, दे आर विविंग द शीट. नाउ एंड इन दिस इट इज कंप्लीटेड. 3.12d, शो द पैटर्न आफ्टर विविंग ऑल द स्ट्रिप. ठीक है, तो हमें पहले क्या करना है, देखो क्या किया, ग्रीन स्ट्रिप में मार्क्स लगाए. ठीक है, कट किया है, और ऑरेंज स्ट्रिप हमने पतली पतली ऐसे ले ली है. ठीक है, और उसको क्या किया, ऊपर नीचे करते हुए वीव किया है. ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट. इन सिमिलर मैनर टू सेट ऑफ यार्न आर वुवन टू मेक अ फैब्रिक. द यार्न, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अभी किया है ना, इसी तरह से हम क्या करते हैं, टू सेट ऑफ थ्रेड इन वीविंग प्रोसेस वी नीड टू सेट ऑफ यार्न. ओके, और उन दोनों सेट को आपस में वीव करते हुए, ठीक है, वीव करेंगे और क्या हमें मिलेगा, फैब्रिक मिल जाएगा. ठीक, नाउ सी द यार्न आर मच थिनर देन आवर पेपर स्ट्रिप. ऑफ कोर्स, ठीक है, तो पेपर स्ट्रिप तो हमने क्या किया है, हमने थिकर लिया है. ठीक है, लेकिन जो ये यार्न होते हैं ये हमारे बहुत ही थिन होते हैं. वीविंग ऑफ फैब्रिक इज़ डन ऑन लूम्स. द लूम्स आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड. तो दिस वन इज़ हैंड ऑपरेटेड लूम. ठीक है, बट तो लूम की हेल्प से हम क्या करेंगे, वी कैन वीव. ओके, क्यों, क्योंकि जो इस यार्न है वो बहुत ही थिन होंगे. ठीक है, अभी पेपर में तो आपको इजीली पता चल रहा है क्योंकि आपने थिक स्ट्रिप काटी है, लेकिन जो यार्न होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ही थिन होते हैं. तो विद द हेल्प ऑफ लूम आइदर इट इज़ हैंड ऑपरेटेड और मे बी पावर ऑपरेटेड, यू कैन डू विविंग. Now knitting, come to knitting. Have you noticed how sweater are knitted? In knitting, a single yarn is used. See in this picture, only one color yarn is used. Okay, one yarn only used. ठीक है, तो फर्स्ट डिफरेंस यही है. विविंग और निटिंग में फर्स्ट डिफरेंस क्या है कि विविंग वी यूज टू सेट ऑफ यार्न एंड इन निटिंग वी नीड ओनली वन सेट ऑफ यार्न.
हैव यू एवर पुल्ड द yarn फ्रॉम torn पेयर ऑफ सॉक्स? जैसे अगर मान लो आपके जो सॉक्स है उसमें कहीं पे छेद हो जाए, ठीक है, या कहीं से वो फट जाए, तो क्या आपने कभी उसको सॉक्स के उस मतलब जहाँ से वो फटा है वहाँ से थ्रेड को मतलब निकाला है, पुल आउट किया है? What happened? A single yarn get pulled out continuously as the fabric gets unraveled. तो अगर आप कभी ऐसा किए हो तो क्या आपने देखा होगा कि जैसे जैसे आप उसको खींचते हो वो पूरे सेट ऑफ यार्न मीन्स आपका जो सॉक्स है उसी प्लेस से क्या होता है, वो खुलना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि सिंगल यार्न से वो पूरा सॉक्स बनाया होता है निटिंग प्रोसेस की हेल्प से। Socks and many other clothing items are made up of knitted fabric. Knitting is done by hand and also on machine. और knitting किसकी हेल्प से होता है? हैंड से और मशीन की हेल्प से। Pahili wants to know if you have seen any fabric that are made of the fibers on the outer covering of coconut. वॉट आर दीज फाइबर्स नॉर्मली यूज फॉर? तो पहली को ये कन्फ्यूज़न होता है कि क्या आपने जो कोकोनट की आउटर कवरिंग है उससे कोई क्लॉथ बना हुआ देखा है? तो वी मीन्स वी कैन गिव द एग्जाम्पल ऑफ रोप। ओके, रोप वो कोकोनट की आउटर कवरिंग के यूज़ करके हम रोप बना सकते हैं, ठीक है। सम टाइप ऑफ मैट्स ऑल्सो। सी now weaving and knitting are used for making different kinds of fabric. These fabric are used for variety of clothing items. ठीक है, तो अब समझ में आ गया। सबसे पहले हमें मिलेगा फाइबर, फाइबर्स की हेल्प से हम बनाएंगे क्या? यार्न, एंड विद द हेल्प ऑफ यार्न वी कैन मेक फैब्रिक, ठीक है। और यार्न से फैब्रिक बनने की प्रोसेस, दो प्रोसेस है, वीविंग एंड निटिंग, ठीक है। आई होप इट इज़ क्लियर। इन वीविंग we need 2 set of thread and in knitting we need 1 set of thread. Okay, thread or you can say yarn. Now history of clothing material. Now see this one, last topic, we will complete this one today only. Okay, maybe video is a little long but you need to complete, and tomorrow I am going to provide you the question answer of this chapter. Now see 3.6 history of clothing material. Have you ever wonder what material people used in ancient time for clothes? It appears that in those time people used the bark and big leaves of tree or animal skin एंड फर टू कवर देम सेल्फ। तो हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग क्या है? पहले के टाइम पे जो आदि मानव थे, ठीक है, उसमें क्या होता था, वो लोग अपने क्योंकि इस तरह से क्लोथ, थ्रेड, फैब्रिक्स ये सब तो होती नहीं थी, तो वो अपने क्लोथ को अपनी बॉडी को ढकने के लिए वो क्या करते थे, जो बड़े बड़े पत्ते होते थे, ठीक है, ट्री के, या बार्क जो पेड़ की छाल होती है वो, या एनिमल स्किन, एनिमल के जो वो हेयर होते हैं, फर, उस सब को यूज़ करते थे अपने बॉडी को कवर करने के लिए। आफ्टर पीपल बिगन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ दे लर्न टू वीव ट्विग्स एंड ग्रास इनटू मैट्स एंड बास्केट। फिर उसके बाद धीरे धीरे क्या हुआ, जब वो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री मीन्स एग्रीकल्चर कम्युनिटी में आए तो उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे उन्होंने बिनाई सीखी, ठीक है, मतलब वीव करना, जैसे ट्विग की है, ट्विग और ग्रास को यूज़ करके मैट, बास्केट ये सब बनाना सीखा, ठीक है। वाइन्स, एनिमल फीस और हेयर वेयर ट्विस्टेड टुगेदर इनटू लॉन्ग स्ट्रैंड, these were woven into fabric. The early Indians wore fabric made out of cotton that grew in the region near the river of Ganga. तो इस तरह से क्लोथ्स पहले क्या करते थे, प्लांट्स के हेल्प मीन्स प्लांट की लीफ, एनिमल की स्किन, इस सब से अपनी बॉडी को कवर करते थे। फिर जब वो एग्रीकल्चर फील्ड में आए तो उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, विद द हेल्प ऑफ ट्विग, ग्रासेस, उन्होंने क्या सीखा, वीविंग सीखी, ठीक है। फिर धीरे धीरे वो विद द हेल्प ऑफ कॉटन उन्होंने क्या किया, फैब्रिक्स बनाना शुरू किया, ठीक है। और कॉटन की मतलब क्या, कॉटन की खेती शुरू की, फिर उन्हें फैब्रिक्स मिले, फाइबर्स मिले, फाइबर से यार्न, फैब्रिक, इस तरह से धीरे धीरे क्लोथिंग की मीन्स स्टार्ट हुई, ठीक है, क्लोथ्स बनाने की। नाउ फ्लैक्स इज ऑल्सो अ प्लांट दैट गिव नेचुरल फाइबर। इन एंशियंट इजिप्ट cotton as well as flax were cultivated near the river Nile and were used for making fabric, ठीक है। तो
मीन्स जो फ्लैक्स प्लांट है उससे भी हमें नेचुरल फाइबर मिलता था, और कॉटन और फ्लैक्स दोनों को यूज़ किया जाता था क्या करने में, फैब्रिक्स को बनाने में, ठीक है। So, next topic. In those days, stitching was not known. People simply wrapped the fabric around their different parts of their body. तो उस टाइम पे क्या था, पीपल को स्टिचिंग में सिलाई नहीं आती थी, तो वो क्या करते थे, सिंपली जब फैब्रिक बन गया तो फैब्रिक को अपने बॉडी के अराउंड रैप कर लेते थे, ठीक है, ड्रैप कर लेते थे। मैनी डिफरेंट वे ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक्स वेयर यूज्ड। विद द इन्वेंशन ऑफ सिविंग निडल, पीपल स्टार्ट स्टिचिंग फैब्रिक टू मेक क्लोथ्स, ठीक है। तो पहले क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, फैब्रिक बनाना शुरू किया, और उसके बाद तब तो निडल या स्टिचिंग किसी को आती नहीं थी, तो वो क्या करते थे, जो सिंपल फैब्रिक या क्लोथ्स रहता था उसको अपनी बॉडी के अराउंड ड्रैप कर लेते थे, ठीक है, लपेट लेते थे। फिर इन्वेंशन हुआ किसका, निडल का, स्विंग निडल का, ठीक है। तो निडल जब आई तो उन्हें स्टिचिंग आई, ठीक है। फिर उन्होंने क्या किया, जो फैब्रिक से उसको स्टिच किया और क्लोथ के फॉर्म में कन्वर्ट किया। Stitched clothes have gone through many variations since this invention. But is it not amazing that even today, sari, dhoti, lungi or turban is used as an unstitched piece of fabric? ठीक है, तो स्टिचिंग पीपल को आ गई, क्लोथ्स बनने लगे, बट अभी भी साड़ी जो है, धोती, लुंगी, टर्बन, ये सब क्या है, पीपल अनस्टिचेड फॉर्म में ही पहनते हैं, in different style. Just as there is a large variety in the food eaten all over our country, a large variety exists also in fabric and clothing item. ठीक है, तो जैसे बहुत सारी वैरायटी के फूड आइटम्स हमारी कंट्री में मिलते हैं, इन द सेम वे लार्ज वैरायटी ऑफ फैब्रिक एंड क्लोथिंग्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। वाई? बिकॉज डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ यू कैन सी, कॉटन, वुलन, सिल्क, ओके, so many variety, ठीक है, because our country is known for unity in diversity. There are lots of variety of culture, religion, food, fabrics. Clear? Now see here, last line. Cotton roll, with the help of ginning we get fiber, ठीक है। गिनिंग क्या बताया था, सबसे पहले बताया था, फर्स्ट प्रोसेस गिनिंग मीन्स टू रिमूव द सीड फ्रॉम कॉटन फाइबर। तो कॉटन रोल, उसके बाद गिनिंग प्रोसेस से हम क्या करेंगे, हमें कॉटन फाइबर मिल जाएगा। कॉटन फाइबर से यार्न मिलने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, स्पिनिंग, ठीक है। फर्स्ट प्रोसेस गिनिंग, सेकेंड प्रोसेस स्पिनिंग। नाउ आफ्टर यार्न हाउ वी गेट फैब्रिक, बाय द प्रोसेस ऑफ knitting and weaving. So children, I hope this chapter is clear to you. If you have any confusion, you can give your suggestion or comment me, okay. If you don't understand anything, and if you like the video, then please share, subscribe the channel. Thank you.